Hey guys and girls, welcome to the lesson number 5 of Learn Hindi and Urdu through English lesson series by ifectner.com. In these lessons, we are learning to speak in Hindi and Urdu through English. In lesson number 5, we will be learning to speak or to talk to the shopkeeper. Lesson 5. Talking to the shopkeeper. Shopkeeper means dukandar. Shop is dukan, and dar is keeper. Dukandar से बातचीत. Talking to the shopkeeper. Dukandar से बातचीत means talking. To the से दुकानदार से बातचीत. It's not बात cheat, it's बात चीत. दुकानदार से बातचीत. दुकानदार से बातचीत. So let's begin our lesson number 5. Talking to the shopkeeper. दुकानदार से बातचीत. दुकानदार से बातचीत. दुकानदार से बातचीत. दुकानदार से बातचीत. Talking to the shopkeeper. दुकानदार से बातचीत. I want to buy some meat and vegetables today. आज, today. आज means today. आज मुझे, I. आज मुझे कुछ गोश्त और सब्जियां खरीदनी हैं. आज मुझे कुछ some. गोश्त means meat और and सब्जियां vegetables. खरीदनी हैं want to buy. आज मुझे कुछ गोश्त. It's not ghost. Now it's गोश्त. We have got two words, s, seen, sa and sha. So it's गोश्त. और सब्जियां खरीदनी हैं. आज मुझे कुछ गोश्त और सब्जियां खरीदनी हैं. आज मुझे कुछ गोश्त और सब्जियां खरीदनी हैं. I want to buy some meat and vegetables today. आज मुझे कुछ गोश्त और सब्जियां खरीदनी हैं. आज मुझे कुछ गोश्त और सब्जियां खरीदनी हैं. I want to buy some butter and bread for the breakfast. मुझे, I, नाश्ते means breakfast, के लिए, for, कुछ means some, मक्खन, butter, or means and, double roti, bread, double roti, bread. खरीदनी है want to buy. मुझे नाश्ते के लिए कुछ मक्खन और डबल रोटी खरीदनी है. Because it's singular, therefore we are using the word है. And in the above sentence we use the word हैं for plural. I want to buy some butter and bread for the breakfast. मुझे नाश्ते के लिए कुछ मक्खन और डबल रोटी खरीदनी है. मुझे नाश्ते के लिए कुछ मक्खन और डबल रोटी खरीदनी है. मुझे नाश्ते के लिए कुछ डबल रोटी और कुछ मक्खन और डबल रोटी खरीदनी है. मुझे नाश्ते के लिए कुछ मक्खन और डबल रोटी खरीदनी है. I want to buy some butter and bread for the breakfast. मुझे नाश्ते के लिए कुछ मक्खन और डबल रोटी खरीदनी है. Do you have ground goat? आपके पास, do you have, आपके पास, आप means do you, आप means you, के पास
you have, do you have? बकरे, goat. का कीमा होगा, minced meat. कीमा means minced meat. आपके पास बकरे का कीमा होगा? क्या आपके पास, you can also use the word क्या. क्या means to ask. आपके पास बकरे का कीमा होगा? आपके पास बकरे का कीमा होगा? आपके पास बकरे का कीमा होगा? Do you have ground goat? आपके पास बकरे का कीमा होगा? Give me 1 pound or give me half kilo. मुझे आध किलो दे दें. आध means half. दे दें, give me. मुझे आध किलो दे दें. मुझे आध, it's not आध, it's आध. मुझे आध किलो दे दें. मुझे आध किलो दे दें. दे दें, द, it's not da, it's द. मुझे आध किलो दे दें. Give me 1 pound. मुझे आध किलो दे दें. Can you help me out? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या means can you? I'm asking a questions. क्या आप, you, मेरी, me, मदद, help कर सकते हैं? Help me out. मदद कर सकते हैं? Can you help me out? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मेरी मदद, help, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? Can you help me out? क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? I am looking for a cooking oil. मैं ऑयल ढूंढ रहा हूँ. ढूंढ means looking for, searching. मैं ऑयल ढूंढ रहा हूँ. मैं ऑयल ढूंढ रहा हूँ. On which counter will I find it? किस काउंटर पर मिलेगा? किस means on which. Counter पर means on. मिलेगा I find. किस काउंटर पे मिलेगा? किस काउंटर पर मिलेगा? On which counter will I find it? किस काउंटर पर मिलेगा? Thanks for the information. बताने का शुक्रिया. शुक्रिया means thanks. बताने means you for telling me. Thank you for telling me. बताने का शुक्रिया. Thanks for the information. Do you take credit cards? क्या आप क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं? Do you accept credit cards? क्या आप, do you, क्या means I'm asking something, आप means you, credit card accept करते हैं? क्या आप क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं? क्या आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं? If you want to literally translate the word take, then it means लेते. क्या आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं? और अच्छा nice word is क्या आप क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं? Do you take credit cards? Thanks for your help. आपकी मदद. Help means मदद. आपकी मदद का शुक्रिया. शुक्रिया. आपकी मदद का शुक्रिया. आपकी मदद का शुक्रिया.
आपकी मदद का शुक्रिया, आपकी मदद का शुक्रिया, thanks for your help. So guys and girls, now I will be talking in English and I would expect you to translate the sentences in Hindi and Urdu. Talking to the shopkeeper. दुकानदार से बातचीत. Very good. I want to buy some meat and vegetables today. आज मुझे कुछ गोश्त और सब्जियां खरीदनी हैं. आज मुझे कुछ गोश्त और सब्जियां खरीदनी हैं. I want to buy some meat and vegetables today. आज मुझे कुछ गोश्त और सब्जियां खरीदनी हैं. I want to buy some butter and bread for the breakfast. मुझे नाश्ते के लिए कुछ मक्खन और डबल रोटी खरीदनी है. मुझे नाश्ते के लिए कुछ मक्खन और डबल रोटी खरीदनी है. वेरी गुड. डू यू हैव ग्राउंड गोट? वेरी नाइस. आपके पास बकरे का कीमा होगा. आपके पास बकरे का कीमा होगा. आपके पास बकरे का कीमा होगा. डू यू हैव ग्राउंड गोट? गिव मी 1 pound और गिव मी ½ किलो. वेरी गुड. मुझे ½ किलो दे दें. कैन यू हेल्प मी आउट? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वेरी गुड. क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी आउट? I am looking for oil. ढूंढ. मैं ऑयल ढूंढ रहा हूं. मैं ऑयल ढूंढ रहा हूं. I am looking for oil. मैं ऑयल ढूंढ रहा हूं. On which counter will I find it? Nice. किस काउंटर पर मिलेगा? किस काउंटर पर मिलेगा? On which counter will I find it? Thanks for the information. बताने का शुक्रिया. बताने का शुक्रिया. शुक्रिया. Do you take credit cards? क्या आप क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं? इट्स नॉट करते, इट्स करते. क्या आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं? क्या आप क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं? क्या आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं? क्या आप क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं? थैंक्स फॉर योर हेल्प. जी, यस. आपकी मदद का शुक्रिया. आपकी मदद, आपकी हेल्प का शुक्रिया. आपकी मदद का शुक्रिया. Thanks for your help. So guys and girls, thank you very much for joining us for lesson number 5 of Learn Hindi and Urdu through English lesson series. If you would like to
read more about it, then please visit ifetner.com and please subscribe to our channel. See you in the next lesson. Until then, take care. Bye bye.